now see, in today's session we will be covering some 2-3 assignments. Okay, so 2-3 assignments will be covered, and you practice it. 2 days are there with you. Although now this is the question, I think so. Okay, I think ये मेरे we have started from this one. Okay, this we have completed. This I was expecting from you. Now I will go for this one, that is write a program to accept a string and check whether the string contains any special character or not. Okay, so shall we go for has everyone joined? Yes. Shall we move for assignment then? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, Yes, sir. sir. Right click on source folder. It is getting open. Let it be. 1 second. Okay. Source, right click, new, and this is checking the string. Okay, so स्पेशल कैरेक्टर चेक करना है हमें स्ट्रिंग के अंदर. सो आई विल से चेक स्पेशल कैरेक्टर, check special character demo. Okay, this is the name of the class I will be giving, and main function उसके अंदर चाहिए, and this I am saying finish. Okay, so it will be creating a class into your project called as a string assignment. Okay, now the question is that we want to write some code like this one. मैं assignment को copy कर देता हूँ. The name of my assignment is write a program to accepting a string and check whether the string contains any special character. Okay, so this is the title. Now what is okay, so what is special character? Anything which is not in the range. Not in the range मतलब क्या, A से लेकर Z तक, या फिर अपर केस A से लेकर Z तक, या फिर 0 से लेकर 9 तक. ओके, इसके अंदर जो भी नहीं होगा, द रेंज. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द ASCII वैल्यू रेंज ऑफ A to Z, because you have learned into C programming. So what is A? 97 or 65. Okay, 97 is for 65 किसका है? 97 to 6 लोअर केस क्या है? Small a 97. Okay, small is 97 to 1 2 2. 1 7. हाँ, 1 एक से बाद. ओके, और ये कितना 65 से लेकर 92, sorry. 65 से लेकर 92. ओके, Hmm. एंड व्हाट अबाउट 0 to 9? 0 49 to 48 है मेरे ख्याल से. 48 to 57 I think so. Okay, this is the range of 0 to 9 ASCII value. Okay, these are all called as an ASCII value. Okay, these are all called as ASCII values. Now this A is from range from 97 to 122. Uppercase A is from 65 to 97 और 48 to, यानी अगर हम पढ़ना चालू करेंगे, so first the characters numbers will be there, the ASCII value, and then the uppercase will start like this one. Okay, so ASCII value will start from 48 to 57. This has been allotted to 0 to 9. 65 to 91 है मेरे ख्याल से, क्या 90 है? 91 है ना? ओके, हाँ, so विशाक्षर. ओके, 91 तक है this A to Z, and 97 to 122 is for A to Z in lower case. Now the program is very simple. Write a program for accepting a string. तो पहले हमें accept करना है string को, and check whether a string contains any special character. Any special character मतलब क्या? इसके बाहर वाला जो भी है,
इसके बाहर वाला जो भी होगा दैट इज कंसिडर एज एन स्पेशल कैरेक्टर। ओके, तो हम फिलहाल इसको नहीं कंसिडर करेंगे नंबर को। यू कैन कन्वर्ट दिस लॉजिक, यू कैन एक्सटेंड इट। हम अभी फिलहाल ये ऐसा कर देते कि यहाँ से यहाँ तक ये रेंज में अगर कोई नहीं होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज स्पेशल कैरेक्टर। ओके, that will be treated as special character. So for importing some value I will be accepting value I will be using this import java dot util package। इसके अंदर वाला स्कैनर हमें यूज करना है। so import java dot util dot star। okay, and this will be containing scanner class, scanner sc is equal to new scanner into bracket system dot in। okay, now what we want to do is that we will be accepting some string from the user। so system dot out dot println, so enter, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, accept a string। so मैं यहाँ पर बोलता हूँ enter name, okay, as string। हमने यूजर को बता दिया कि नाम डाल दो और वो भी स्ट्रिंग में डाल दियो। now he will be entering and we will be storing into a variable called as a string। so string हम उसको बोलेंगे name is equal to sc dot next। okay, so this will be accepting the name। okay, मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ में आया बराबर। Yes, sir. okay, now what we want to do is that we want to check the string। तो चेक करने के लिए पहले हम लेंगे उसकी लेंथ। ओके, सो वी वांट टू चेक इट द स्ट्रिंग। क्या चेक करना है उसके, टू चेक स्ट्रिंग हैविंग एनी स्पेशल कैरेक्टर। कोई स्पेशल कैरेक्टर है क्या, मतलब क्या, अगर किसने कोड डाल दिया IBMRD@, नगर, ऐसा किसने तो भी डाल दिया, तो मतलब क्या, देयर इज सम स्पेशल कैरेक्टर। एंड व्हाट इज सम लोकेशन, कहाँ पर, तो भी वो आपको पूरे स्ट्रिंग में ये @ दिखाई दे रहा। सब में एंटर डॉट, सब में एंटर स्पेशल कैरेक्टर लाइक नॉट साइन or anything like this one or anything like dollar sign or anything like and sign। okay, so I don't want anything like this one। अगर जहाँ पर भी मिल रहा है तो हमें उसको रुकाना है। I don't want anything into this string। okay, it should be very clear, it should be like this IBMRD NAGAR, like this plain text content। you can put like this also IBMRD NAGAR, अपर केस लोअर केस चल जाएगा, बट ये स्पेशल कैरेक्टर इसके अंदर नहीं चाहिए, इतना हमें इसके अंदर लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक अ लेंथ। सो INTLEN, दिस इज द लेंथ दैट इज फ्रॉम योर नेम डॉट लेंथ से हम उसकी लेंथ ले सकते हैं। ओके, नाउ ये लेंथ क्यों चाहिए, बिकॉज वी वांट टू यूज दिस लेंथ फॉर एग्जीक्यूटिंग। सो फॉर लूप भगाएंगे, दैट इज INT I इज इक्वल टू 0 एंड I इज लेस देन LENGTH, लेंथ नहीं, अभी ये हम बोलेंगे LEN बिकॉज हमने ये वेरिएबल लिया है। सो LEN एंड I प्लस प्लस। सो आई विल बी एग्जीक्यूटिंग अ लॉजिक इनटू दिस फॉर लूप एंड मैं हर बार चेक करूंगा हर एक कैरेक्टर के लोकेशन में कि ये कैरेक्टर पे ये I जो फर्स्ट इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या ये अपर केस लोअर केस के बीच में रहती है क्या नहीं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू स्टोर दिस वैल्यू okay into a local variable। so I am declaring one character char ch मैं बोलता हूँ ch is equal to सिंगल कोट में उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। okay, so there is no need to initialize, I think so, सिर्फ हम उसको डिक्लेयर कर देंगे। okay, now this ch is equal to the name of the is name dot char at, so char at function and index number will be the I। को जो भी इंडेक्स में मेरे को कुछ मिलेगा दैट विल बी स्टोर्ड इनटू दिस लोकल वेरिएबल। अभी मैं हर बार चेक करूंगा इफ लूप के अंदर, इफ दिस ch इज ग्रेटर देन सिंगल कोट a एंड इफ दिस ch इज लेस देन सिंगल कोट z lower case, less than equal to, sorry, greater than equal to and less than equal to, इस रेंज में होगा तो हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं, फिलहाल हम एक टेस्ट कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना। हमें एरर कब जनरेट करनी है, हम एरर कब जनरेट करना है, वेन एवर द सिचुएशन गोज रॉन्ग। मतलब क्या कि
अगर ये नहीं होगा मतलब आई विल बी एडिंग वन मोर नॉट साइन. ओके, सो इफ दिस कंडीशन डोंट फॉलो, यानी ये कंडीशन अगर फॉलो नहीं हो रही है, okay, so if it is not there, automatically the program should show enter कैरेक्टर. अभी ये मैं पूरा लॉजिक नहीं लिखा, मैंने थोड़ा सा ही लिखा है, मैंने सिर्फ लोअर केस को कंसिडर कर रहा हूँ, बाद में हम अपर केस को कंसिडर करेंगे, उसके बाद हम कुछ नंबर को भी कंसिडर कर सकते हैं. फिलहाल हमने सिर्फ लोअर केस को कंसिडर किया कि पूरी स्ट्रिंग ऐसी होनी चाहिए. इट शुड नॉट कंटेन एनीथिंग लाइक दिस वन, एट द रेट और कहाँ पर तो भी आया तो इमीडिएटली रेंज में अगर नहीं होगा तो इमीडिएटली द प्रोग्राम शुड टर्मिनेट. तो सिस्टम डॉट आउट डॉट एंटर कैरेक्टर ओनली. ओके, and we'll give the message that enter character only, and we will break this program. Okay, so break will be used to exit this if statement and for loop. Okay, that's it. और हम इसको अभी रन करके देखेंगे. shall we run this program? और सिंपल टेस्ट कर रहे हैं हम इसमें कि इसमें कहाँ पर भी आपको ए से जेड तक वाले कोई अलग कुछ डाल दिया तो that will be terminating the program with showing some message in front of you. Are you clear with this logic? Yes or no? Yes sir. ओके, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये निकाल देता हूँ. ये नहीं, मैं ऐसा हे तो जो लॉजिक मला वाटतं बऱ्यापैकी सगळ्यांना समजलं असेल. ओके, सो मैं इसको बोलता हूँ रन. नाउ दिस विल बी रनिंग. So I will be putting like this, I Bhamani Nagar. So it's running, 1 second. Okay, so enter string, so I will be entering IBMRD, और मैंने गलती से कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया इसके अंदर और मैंने बोल दिया नगर, एंड व्हेन आई प्रेस एंटर, सो एंटर कैरेक्टर ओनली उसने मैसेज जनरेट कर दिया. ओके, सो एंटर कैरेक्टर गलती से कुछ उसने डाल दिया. इफ आई पुट समथिंग वेरी गुड लाइक दिस IBMRD NAGAR नगर और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, मेरे को कुछ नहीं दिखा बिकॉज द प्रोग्राम इज, अगर सिचुएशन अच्छी होंगी तो हमें रुकाना नहीं. बट इफ ही एंटर्स लाइक दिस एनी स्पेशल कैरेक्टर देन द प्रोग्राम शुड गेट टर्मिनेटेड. द प्रोग्राम शुड गेट टर्मिनेटेड मतलब उसने मैसेज दिखाना चाहिए कि कुछ तो भी डाल दिया उसने. सो अजय and I am speaking special, space is also given Mathur. Okay, so I am entered like this Ajay Mathur and uske andar space है. So now this will be executing. 1 second. अजय, ये बफर रीडर का प्रॉब्लम है, ये बफर रीडर चाहिए था एक्चुअली. शायद सर नेक्स्ट लाइन करना पड़ेगा ना. हाँ, नेक्स्ट लाइन करना पड़ेगा. ये दिस वन बिकॉज ये चल रहा नहीं उसके अंदर. डॉट नेक्स्ट, ये वाला. यस, दिस इज करेक्ट. ओके, नाउ सी व्हेन आई एंटर सम स्पेसेस इनटू दिस, सपोज आई सेड अजय, आई विल एंटर इनटू अजय, दो चलेगा, दिस इज नो इशू अबाउट दैट. व्हेन आई से अजय A again Ajay and some special character into there Mathur. Okay, so this will terminate, this was enter character only because this is not allowed. And if I say that Ajay Mathur, Ajay, that's like this Ajay space Mathur, and now see this is again because space is there, space is again being considered as a special character. Okay, तो हमें ऐसी पॉसिबिलिटी देनी है कि you have to enter the name. तो कोई भी बंदा नाम डालना मतलब क्या, हमने उसको बोला नहीं कि ओनली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम. ओके, सो इन दिस प्रोग्राम नाउ विल कंसिडर दैट वी वांट ओनली वन लाइन, तो हमने स्पेस को कंसिडर नहीं किया. नाउ एनी पर्सन कैन एंटर लाइक दिस नेम आल्सो, सपोज लाइक दिस ही कैन पुट अजय लाइक दिस. ओके, नाउ दिस इज विल बी ट्रीटिंग दिस ए बिकॉज दिस इज नॉट, वी हैव नॉट चेक इट, इसको हमने चेक नहीं किया, अपर केस को नहीं चेक किया. सो अगेन वी विल बी राइटिंग वन कंडीशन दैट इज, ये मैं निकाल देता हूँ फिर से. अभी लॉजिक को फिर से एक बार मैं बता देता हूँ. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन दैट इज द रेंज शुड बी फ्रॉम ए टू जेड. या एक तो आप डालते समय नाम ए से लेकर जेड तक डाल सकते, यानी जैसा ओके ए से लेकर जेड तक इन लोअर केस में डाल सकते, या फिर मतलब क्या, और कंडीशन, और यू कैन राइट और यू कैन सेंड अ कैरेक्टर
which may be greater than equal to single quote a and condition, and मतलब क्या, उसी रेंज में, and the character may be less than equal to the z, यानी a से लेकर z तक अपर केस लोअर केस में हो सकता है. Now whenever I am putting like this condition, I need to put a bracket at starting position and at end position, यानी ये अभी दो इसको बाइंड करेगा. ओके, दोनों को बाइंड कर दिया. अभी इसका उल्टा अगर आपके पास नहीं है तभी प्रोग्राम को टर्मिनेट करा. सो वन मोर ब्रैकेट नॉट साइन एंड हियर द ब्रैकेट इज बीइंग क्लोज्ड. सिंपल, मैंने बहुत सिंपल तरीके से लॉजिक बताया. ये एक हमारी कंडीशन है और ये एक हमारी कंडीशन है, दोनों को एंड और हमने करके यहाँ पर दिखा दिया. आर यू क्लियर? Yes, sir. Okay, when I run this program, line number 33, 1 second, उसमें कुछ गलती हुई क्या? ch is greater than equal to a, ब्रैकेट का कोई तो भी इशू है. 1 second, आई एम जस्ट रिमूविंग द ब्रैकेट्स अगेन. और के बाद में सर ब्रैकेट. 1 second, 1 second, और ये मैं सब निकाल दे रहा हूँ. ओके, दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन, दिस इज एंड दिस इज और. ओके, और यहाँ पर मेरा एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आया था. ओके, नाउ दिस नीडेड टू बी क्लोज्ड. अभी ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसको क्लोज करना है यहाँ पर, आया ध्यान में, एंड यहाँ से इसको ओपन अप करना है, इसको क्लोज करना है यहाँ तक, यानी ये दोनों का हमने क्लच कर दिया. बाद में एक और एक ब्रैकेट लगाना है जिससे हमने दोनों कंडीशन को ग्रैब कर दिया. और थर्ड ब्रैकेट लगाना है हमको कि दैट इज उसका उल्टा. ओके, आई थिंक दिस इज नाउ देयर इज नो एरर. ओके, यहाँ पर एरर था कहाँ पे, अभी ये सब ब्रैकेट्स का एरर खत्म हो चुका है. एंड आई एम नाउ रनिंग दिस प्रोग्राम. नाउ आई कैन से Ajay upper case lower case and I'm pressing enter, nothing will happen. Okay, and if I say like this, Ajay space Mathur, this will show an error. या फिर मैंने बोल दिया Ajay and I have put it some special character at the end or any number like this one. Okay, so it will show me that enter character only. Okay, so I think this is clear to everybody. If you want some condition to be added, दो ब्रैकेट के बाद यानी ये दोनों के बाद, if you want to add some condition like this, that is ch is exactly equal to single quote space, तो वो space को भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. Okay, now same program, I am adding some conditions and automatically it will be running. So I am saying Ajay space Mathur and I am saying it is no issue, उसको वो accept कर रहा है. Okay, are you getting? Yes or no? Yes, sir. So we have accepted a character range from A to Z, upper case lower case, यहाँ से यहाँ तक. This is and condition, and और option के लिए ये भी लिया है हमने second condition, A से लेकर Z तक. एंड थर्ड कंडीशन में हमने लिया कि उस स्पेस होगा तो भी हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं. अगर एक्सेप्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं होगा तभी हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे. आर यू गेटिंग क्लियर? सो द प्रॉब्लम वाज write a program for accepting a string and check whether a string contains any special character, and now it is containing, so enter character only. so हम बोलेंगे special character identified. so you can give this message that special character identified वाला मैसेज आप दे सकते हैं as far as the logic is concerned. so are you getting this one? no issue. ये लॉजिक समझ में आया सबको? दैट वी आर यूजिंग कैरेट एट दैट लोकेशन, कि हर बार ये क्या करेंगे, इसके हर एक इंडेक्स को कंसिडर करेंगे. एंड व्हाट इज दिस वन? नेम. नेम में आपने जो भी नाम लिया है दैट इज द नेम. सो नेम डॉट कैरेट एट दैट लोकेशन, इंडेक्सिंग हर एक नंबर का. दिस आई इज एट इंडेक्स नंबर 0, देन बी इज एट इंडेक्स नंबर 1, देन 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा हो जाएगा. कहाँ तक रिट्राइव करना है, दिस इज बीन डिफाइंड बाय दिस लेंथ फंक्शन. सो हमने फॉर लूप को इस तरीके से भगाया. आई हैव स्टार्टेड विद इंडेक्स नंबर 0, और कहाँ तक उसको एग्जीक्यूट करना है फॉर लूप को, हर एक कैरेक्टर को एग्जीक्यूट करने के लिए उसकी लेंथ तक.
कितनी भी बड़ी लेंथ हो, आपने कितना ही बड़ा नाम डाल दिया होगा उतना वो नाम को एक्सेप्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं. इफ आई एंटर like this any big character and I run it, it will be executing. There is no issue about this. Okay, are you getting? So length, any number of length, user can enter any length. Okay, so if I enter like this and I enter some special character in this will be the wrong interpretation. Okay, because special character is there. So length will be helping us to retrieve up till the end. और हर एक कैरेक्टर के इंडेक्स को हमने रिट्राइव करने के लिए कैरेट यूज किया है. सो कैरेट एट इंडेक्स विल बी रिट्राइव्ड इनटू दिस सी एच एंड दिस सी एच इज बीन चेक्ड वेदर इट इज इन द रेंज ऑफ ए टू जेड इन लोअर केस और वेदर इट इज इन रेंज ऑफ ए टू जेड इन अपर केस और वेदर इट कंटेन्स space. If you want to add some more condition like this one, you can check it. Okay, so और एक मैं condition डाल देता हूँ. If ch is greater than equal to कौन सा, what is the ASCII value of number, number की क्या ASCII value है, it's 48 I think so. Okay, 48. Okay, ये bracket and ch is less than equal to 47. ये सॉरी कितना है 48 to 57. ओके 57 और इसको और एक ब्रैकेट हम लगाएंगे, दोनों कंडीशन को एंड करना है तो यहाँ पर एक ब्रैकेट, यहाँ पर एक ब्रैकेट. ओके, दिस प्रोग्राम विल बी एक्सेप्टिंग नंबर ऑल्सो नाउ. ओके, so only special character will not be considered. So I am saying Ajay Mathur space 7. Okay, so this will be accepted because number is accepted. Okay, and if I enter a special character into this one at any situation, if I say Ajay space dollar and space Mathur, so this will be showing a special character identified. Okay, are you getting? Yes, everyone is getting. Yes sir. Yes sir. अभी कोई दिक्कत नहीं, ये लॉजिक सबको समझ में आया पूरे लाइन में क्या क्या किया मैंने, कैसे कैसे एंड और कंडीशन को डाल दिया. ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव फर्दर. नाउ ये वाला आप ट्राई करो सॉर्ट करने का. नाउ दिस वन आई वांट टू डू, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट योर नेम फ्रॉम द यूजर, प्रिंट ईच नेम ऑन सेपरेट लाइन. ये मेरे ख्याल से मेरा हो चुका है बट स्टिल विल गो फॉर दिस वन. ओके, ये प्रोग्राम को हम करेंगे. फाइल न्यू क्लास, ये कौन सा असाइनमेंट है हमारा, असाइनमेंट 77. मैं इसको नाम देता असाइनमेंट नंबर 77. क्या नंबर चल सकता है क्या क्लास के नाम में? यस, can I add this number into the name of a class? Yes or no? क्या हम क्लास को डिक्लेयर करते समय कोई नंबर दे सकते हैं क्या? Anyone? Yes or no? Yes sir. Yes, okay. ओके, नंबर इज एक्सेप्टेड बट स्टार्ट में नहीं चाहिए. ऐसा अगर आपने डाल दिया होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दिस विल बी जनरेटिंग एन एरर. ओके, सो इंपोर्ट java.util.star. ओके, एंड हमें ये प्रोग्राम को कौन सा प्रोग्राम है ये भी लिखना पड़ेगा. सो आई एम राइटिंग दिस वन और ये हमें काम करना है इसके अंदर. ओके, सो सेम प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नेम फ्रॉम द यूजर and print each character on separate line. हर एक कैरेक्टर को सेपरेट लाइन में दिखाना है and display the length of the text, यानी जो भी नाम दिया है एंड उसको अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट करो. ओके, नाउ विल टेक फर्स्ट स्ट्रिंग हम उसको नाम देंगे स्ट्रिंग नेम. अभी यूज़र के पास से नेम लेना है. देन हमें स्कैनर चाहिए यूज़र के पास से लेने के लिए. सो स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर इनटू ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन. ओके, तो हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए एक इंटीजर दैट इज i इज इक्वल टू 0. हमें एक चाहिए लेंथ int लेंथ len, हम लेंथ यूज़ करेंगे, ये भी हमें इनिशियलाइज करना है 0 को. और क्या चाहिए, बस इतनी ही चीज़ें चाहिए. ओके, अपर केस लोअर केस हम कर सकते हैं. सो विल से पहला नाम डाल दो, सिस्टम डॉट आउट दैट इज एंटर नेम. ओके,
So whenever the user enters her name, that will be stored into a variable called as a name variable, जिसको हमने ऊपर declare किया है, and sc, that is object of scanner class dot next line. Okay, next line से will be accepting one string. Okay, now what I have to do is that कि हमें print each character on a separate, हर एक character को separate करना है. अगर आपने डाल दिया कोई नाम ऐसा, for example if you are added some name like this one, so मैं बोलते हुए this is accept name from user. Okay, if the person enters Ajay like this one, so you have to display like this A, J, A and Y. It should be on a separate line. Are you getting? This is the first task you have to do. Now उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको फॉर लूप यूज करना होगा. सो फॉर लूप्स के पहले आपको लेंथ पता होना चाहिए, उसने अजय कितना बड़ा, कौन सा कैरेक्टर कितने लेंथ का डाल दिया. सो फॉर दैट पर्पस वी विल बी यूजिंग अ वेरिएबल कॉल्ड एज len इज इक्वल टू नेम डॉट लेंथ फंक्शन. ओके, सो len is length function, will be giving the length of the name. Now for loop will be retrieved, ये for loop use करेंगे, I is equal to 0, I is less than len length and I plus plus. Okay, so I want to display it on a separate line, so system.out.println, and I will be saying name dot char at the index number I. Okay, so this will be displaying, so I will be saying that to display each character on separate line. Okay, so this logic is for displaying this on a separate line. I have not using this bracket like this one. क्या ज़रूरत है कि इसको ये ब्रैकेट की, अगर मैं नहीं लिखा तो एरर आएगा क्या? No, sir. Okay, and if I put semicolon, एरर आएगा? नहीं. Yes. नहीं आएगा, क्या आएगा? मतलब प्रोग्राम बराबर रन नहीं होगा सर. Okay, it will be moving to the last point. This is the semicolon, means what, ये प्रोग्राम जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, लेंथ लास्ट तक नहीं जाता, तब तक ये ऐसा ही एग्जीक्यूट होगा. सो इट इज वन. सो सिंगल लाइन कोड है. So for loop will be executing this line because single line is allowed. If you are using multiple lines, then you have to go for parenthesis like this one. Okay, अब ये कब यूज करेंगे, जब आपके पास 2-3 लाइन का कोड बीच में होगा, तब आप यूज करते parenthesis. It is single line, there is no need to give. Okay, there is no need to give a bracket. Yes, everyone is getting. So this is class, this is main. ये दो एक bracket ज़्यादा आ गए. Okay, so this is closing of my main function and this is closing of my class. ये start में ही लिखा तो अच्छा जाता है. Okay, now this will be displaying separate line. Now second question is this, display the length of the, ये display करना है हमें length. So how to display it? This is a part. तो how to display it? Very simple. It is system.out.println. हम बोलेंगे length of name. Okay, so plus operator and I will be using len, the variable जिसके अंदर हमने ये length को store किया है. Okay, and third one, I want to display the name in uppercase and lowercase. Okay, so that's it. This is the third one. So what's, it's very simple. You can use the ready-made function. कौन सा है? अब यहाँ पर मुझे upper case में use करना है. So upper case will be using, this is name dot to uppercase. Okay, so this is the function called as a to uppercase. You can use it and you can display the output in uppercase. Same way you can display the output in lowercase also. So double quote lower case. Okay, and this is what is plus name dot to lower case. That's it. फॉर्मेट में कर देता हूँ सबको. सोर्स फैक्टर. ओके, is it clear to everybody? This is displaying it in uppercase, this is in lowercase, this is the giving the length, and this is displaying the character on each line because of this for loop. Yes, everyone is getting. Shall I run this program now? Yes, sir. Okay, so I am entering Ajay again, Ajay Mathur. Okay, so I have entered this one and I am pressing press. So see, it is displaying me Ajay Mathur on a separate line. Ajay space and then Mathur, and the length is 11. Let us check it.
1 2 3 4 5. 5 means what? Fifth one is your space. Sixth, seventh, 8, 9, 10 and 11. This is the 11th is the size of the length. And I have seen this is Ajay Mathur in uppercase and this is Ajay Mathur in lowercase. Yes. 1 second, ये आउटपुट थोड़ा दिखाते हैं हम. Okay. Ajay Mathur. This is in uppercase, this is in lowercase. Length is 11 and the character we have entered this one and we are getting first output, second output and third output. So are you clear with this one? Yes, sir. Yes. Okay. The next one. Write a program to accept name from user and perform following operation. Check the length of name and find the digit or special character. ये मेरे ख्याल से ये आप कर सकते हैं. Now you can use the logic. You can use the logic which I have implemented. ये मैंने पहले जो implement किया है उसी को ही आपको फिर से implement करना है 78 के अंदर, पर दोनों चीज़ को handle करना है. Now this one I want to teach you. That is email validation. Email validation मतलब क्या? You will be accepting the email ID and you have to check whether the email ID is correct or not. Is correct or not. Now what is which email ID is correct? The email ID should have some conditions. So I will go for writing one code, source, right click, new, and I am saying this one class. I will say check email. Okay, the name of my class is check email and इसके अंदर main function रहेगा and I am saying finish. Okay. Now this is the logic I will be implementing into this program. So what are the condition of email? Minimum conditions we will be considering this into this one. Now first condition will be that is the email ID, the first index must should have a character. मतलब क्या? You can create an email ID like this, ibmrd@gmail.com, but you cannot create an email ID like this one. 1 2 3. किसने कभी अभी तक किया क्या? 1 2 3 ibmrd@gmail.com. Your character, this one should never be in first one. So you can create ibmrd 1 2 3, but you cannot create 1 2 3 ibmrd@gmail.com. So what is the first rule? The first index यानी जो पहला character है, it should be character only. Are you getting? You can create email like this, no issue. i123@gmail.com चलेगा, because first character, the first index is 0. What do we call as a character? तो चलता है. Are you getting? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now second condition आपको चेक करना है. You should have only one @ मतलब क्या? आपके मेल आईडी में ऐसा कभी नहीं होता कि @ 2 बार यूज़ करें. @ कम से कम एक बार चाहिए. तो कहाँ पर है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं. ओके, तो कम से कम @ इसके अंदर चाहिए. बराबर है कि नहीं? फर्स्ट कंडीशन. Yes. Second condition. Is it clear to everybody? Yes, sir. Okay. And third condition should be that there contain at least 2 dot at the most. At the most मतलब क्या? You can use the mail ID जिसके अंदर डॉट एक बार है कम से कम. Okay. There might be some mail ID like this, ibmrd@gmail.co.in. ऐसा हो सकता है ना. याहू का बहुत सारे मेल है जैसे yahoo.co.in, तो हो सकता है ऐसा मेल आईडी. ओके, सो एट द मोस्ट डॉट कैन बी ट्वाइस, 2 बार हो सकता है. कैन यू राइट अ कोड फॉर दिस वन? क्या डू यू वांट अ सॉल्यूशन फॉर दिस? यस. कैन यू ट्राई एट होम or should I give a solution for this one? Yes. सर सॉल्यूशन ही बता दो. Okay, so we'll start writing a code for this one. चलेगा? I want reply from other students. Yes, remaining students, क्या करना है क्या? चलो. So first we'll be importing one package called as a import Java. Am I audible? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Util.star. So this package
ये लॉजिक इससे ऐसा अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो दिस विल बी हेल्पिंग यू टू क्रिएट वेरी गुड लॉजिक. सो स्ट्रिंग हम यूज़ करेंगे, दैट इज स्ट्रिंग ईमेल. हम ईमेल यूज़र के पास से लेंगे. देन विल आई वांट अ स्कैनर क्लास, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, जिसे हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं यूज़र के पास से. सो सिस्टम डॉट इन. ओके, सो दैट विल बी गिविंग दिस वन. सो मुझे उसकी लेंथ भी चाहिए. सो INT लेंथ. Then I want to count the count at the rate. So AT count at the rate. Okay, वो भी मुझे काउंट करना है. So it first initialize करते समय 0 करेंगे. Then I want to count dot also. So count 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 dot. Okay, वो भी हमें काउंट करना है. इनिशियल हम उसको 0 रखेंगे. और okay, बस बाकी कुछ नहीं. Okay, so this is the basic thing I want. Then first of all I will be accepting the name. So system dot out dot println, हम यहाँ पर बोलेंगे enter email ID. Okay, so that person will be entering a email ID and we will be accepting it into and storing into email variable. So sc dot read नहीं, यहाँ पर next होता है. So नेक्स्ट लाइन से हम उसको रीड करेंगे और उसको हम स्टोर करके रखेंगे ईमेल के अंदर. ओके, नाउ वी विल बी रनिंग द प्रोग्राम. फर्स्ट कंडीशन इज वेरी सिंपल. नाउ व्हाट विल डू इज दैट वी विल बी चेकिंग ईच ईमेल एट द फर्स्ट क्लास. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक लेंथ डिक्लेयर करेंगे. सो लेंथ हम ले लेंगे. सो लेंथ इज इक्वल टू जस्ट वेरी सिंपल ईमेल डॉट लेंथ. ओके, so this will be giving us the length. इससे हमें क्या मिलेगा, हमारी ईमेल आईडी की लेंथ मिलेगी. सो ईमेल लेंथ कितनी है वो हमें मिल जाएगी. ओके, नाउ आई विल बी राइटिंग द चेकिंग द फर्स्ट कंडीशन. अब मैं फर्स्ट कंडीशन को चेक कर रहा हूँ. ओके, सो चेक फर्स्ट कंडीशन. प्रॉब्लम को थोड़ा धीरे धीरे लेके जाएंगे. ओके, द फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इंडेक्स नंबर 0, यानी द फर्स्ट इंडेक्स शुड बी हैविंग ओनली कैरेक्टर. ओनली कैरेक्टर मतलब क्या कि इफ ईमेल, यानी जो आपको ईमेल मिला है, डॉट कैरेट इंडेक्स नंबर 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिंगल कोट A एंड, यानी क्या हम ये पहले इंडेक्स पे यानी इंडेक्स नंबर 0 पे, अभी मैं ऐसा लिखूंगा कि इंडेक्स नंबर जहां पर भी इंडेक्स 0 है, वेर एवर द इंडेक्स इज 0, इन दोज लोकेशन आई कैन एक्सेप्ट कैरेक्टर फ्रॉम A to Z. इसके बाहर वाला अभी कोई भी होगा, आई विल एक्सेप्ट दिस वन, आई विल एक्सेप्ट दिस वन, आई विल एक्सेप्ट दिस वन. वो ये इसके अंदर यही चाहिए. इफ इट इज नॉट देयर, इट इज नॉट देयर, अगर ये नहीं होगा तो आई विल जनरेट एन एरर. सो अगर नहीं होगा तो आई विल जनरेट एन एरर. इमीडिएटली आई विल बी जनरेटिंग एन एरर. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, द इंडेक्स नंबर 0. आगे का इंडेक्स से मुझे कुछ लेना देना नहीं. सो दैट्स व्हाई आई हैव एंटर्ड ईमेल डॉट कैरेट एट इंडेक्स नंबर 0 इफ इट इज A एंड ईमेल डॉट char at index 0 is greater than equal to Z. लोअर केस में, मैंने हर बार मेल आईडी लोअर केस में ही होता है, अपर केस में कभी नहीं होता. सो ये कंडीशन अगर होंगी तो कोई दिक्कत नहीं. बराबर है कि नहीं. सो इफ देखो कंडीशन ईमेल डॉट कैरेट 0 इज ग्रेटर देन A एंड ईमेल डॉट कैरेट 0 इज ग्रेटर लेस देन, अगेन लेस देन, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग एन एरर. ओके, सो अगर ये होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये नहीं होगा तभी एरर हमें जनरेट करनी है. एंड व्हाट इज दैट एरर, इमीडिएटली यू हैव टू से, नहीं होगा तो एंटर कैरेक्टर एट फर्स्ट पोजीशन. ओके, अगर ये नहीं होगा तो सर लेट अस, ये फर्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही क्या वो हमें भी चेक करेंगे. आर यू गेटिंग दिस वन, द फर्स्ट कंडीशन सबको समझ में आई, हम क्या कर रहे हैं. यस सर. ओके, सो आई एम जस्ट रनिंग दिस वन. अगर मैंने सही तरीके से डाल दिया IBMRD फिलहाल @gmail.com,
index.com and I press no problem. Okay, but if I enter anything apart from this, just like this one ibmrd@gmail.com, then in this situation it will say enter character at first position, because I have entered 1 at index number 0. So this condition is identified. Are you getting? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay. Now this condition is then, and चलो आगे हम जाते हैं. Now we will be writing a for loop. अब ये हम दूसरी कंडीशन और थर्ड कंडीशन, सेकंड एंड थर्ड कंडीशन को हम एक साथ ही चेक करेंगे. अभी फर्स्ट कंडीशन तो हमारी हो चुकी है ना. अभी ये नहीं होगा तो हम प्रोग्राम को यहाँ पर ही रुकाएंगे, otherwise we will be moving further. Okay, so for I is equal to 0 and I is less than length, क्योंकि हमें ईमेल की लेंथ तक ही काम करना है, उसके आगे जाना ही नहीं है. सो आई एम मूविंग इनटू दिस वन. सो ये पूरा लॉजिक इसके अंदर ही हम लिखेंगे. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर, क्योंकि मेरे ध्यान में होना चाहिए कि ये किसका क्लोजिंग है. दिस इज क्लोजिंग ऑफ माई मेन फंक्शन. ये मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग दिस वन बिकॉज दिस विल बी क्रिएटिंग न्यूसेंस एट द एंड ऑफ द कोड. ओके, सो ये लूप बताएंगे कि हम कहाँ से कहाँ. सो व्हाट इज आई, इट इज नॉट डिक्लेयर, सो आई जस्ट डिक्लेयर इट आई. तो यहाँ पर उसका एरर जाएगा. ओके, सो आई विल बी एग्जीक्यूटिंग नाउ. This ch I will be declaring one more character, so scar ch हम ले लेंगे एक वेरिएबल को. नाउ दिस इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ, क्योंकि हम ये हर बार लिख रहे हैं ना. हाँ, इतना बड़ा लिखने में कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा वी आर वेस्टिंग एनर्जी फालतू. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज दैट आई मेक इट वेरी शॉर्ट. ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे पिछले वाले प्रोग्राम में लिया था. तो दिस इज ch इज इक्वल टू email डॉट कैर एट इंडेक्स नंबर आई. अभी यहाँ पर आई क्योंकि हर बार लूप एग्जीक्यूट हो रहा है तो हमने आई को डाल दिया. ओके, नाउ वी विल बी यूजिंग चेकिंग इट कि बाकी के सब इसके अंदर, मेल के अंदर आप नंबर भी डाल सकते और कैरेक्टर भी डाल सकते. यू कैन एंटर नंबर ऑल्सो एंड यू कैन एंटर कैरेक्टर बाकी के लोकेशन के अंदर. ओके, सो आई विल बी चेकिंग दिस वन. सो इफ ch is greater than equal to single quote a and ch is less than equal to single quote z, or ch is greater than equal to single quote नहीं, अब ये नंबर एक. what is the ASCII value of number? One second, it is from 48 to 57. Okay, so from 48 to 57 means and condition ch is less than equal to 57. Okay, और क्या हो सकता है इसके अंदर, मेल के अंदर और भी एक कंडीशन है कि आप उसके अंदर ch is exactly equal to @ भी हो सकता है, या फिर ch that is that character at that index can be exactly equal to डॉट भी हो सकता है. बराबर है कि नहीं? तो आपके मेल में क्या क्या हो सकता है, a से लेकर z तक एंड कंडीशन से, 48 से लेकर 57 मतलब नंबर हो सकता है, @ हो सकता है, डॉट हो सकता है. इसके बावजूद इसके अंदर कुछ नहीं चाहिए. सो अगेन आई विल बी राइटिंग वेरी प्रिसाइज पैरेंथेसिस. तो ये पहली कंडीशन को ओके करता है, ये सेकंड कंडीशन को ओके करता है, और ये बाकी का और ही है. ये है पूरा प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे हम इसको यहाँ पर. एंड ये अगर होगा तो हमें करना क्या है, ये अगर होगा तो हमें जाना है अंदर और ये चेक करना है क्या कि कितने बार ये @ है, कितने बार ये @ है. तो हाउ टू डू दिस, इफ ch is exactly equal to single quote @ then what you have to do is that ये @ के वाले को इंक्रीमेंट करना है, @++. ओके, या फिर count plus is equal to +1.
Okay, and if it is like this one, so we can say that if the character is dot, then we will be counting the dots, कितने बार dot है. Okay, so are you clear? Yes or no? Yes or Yes, no? sir. Okay. चलो अभी इतना ही लॉजिक को हम देखेंगे कि कितने कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है. लेट अस सी. ओके, तो हम यहाँ पर डिस्प्ले भी करेंगे एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम. दिस इज द फॉर लूप, ये दिस इज ऑफ इफ स्टेटमेंट, सो आई एम सेइंग दिस इज ऑफ इफ. और हम एंड में यहाँ पर इफ खत्म होने के बाद, फॉर लूप खत्म होने के बाद हम डिस्प्ले करेंगे कितने बार एट द रेट है एंड कितने बार काउंट है. सो एट द रेट कितने बार है और सेम वे डॉट कितने बार है. डॉट कितने बार प्लस COUNT काउंट डॉट. दैट्स इट. कहाँ पर भी एरर नहीं है. अगर होती तो यहाँ पर रेड कलर दिखाई देता. आई एम सेविंग द फाइल एंड रनिंग द कोड. ओके, now we are just writing this ibmrd@gmail.com. okay, so at the rate एक बार है और डॉट एक बार है, तो कोई दिक्कत नहीं. बराबर है कि नहीं? यस. Yes, sir. Simple. Again I am saying ibmrd@yahoo.co.in. तो एट द रेट एक बार और डॉट दो बार है, so it is calculating. No problem about that one. Okay, अगर ये कंडीशन होंगी तो कोई दिक्कत नहीं. Okay, so if कंडीशन में if this at the rate is exactly equal to 1 and what, ये वाला this dot एक तो एक बार हो सकता है लेस देन इक्वल टू 2, दो बार हो सकता है, एक बार हो सकता है. ओके, सो इट माइट बी एग्जैक्टली इक्वल टू, एक बार तो होना चाहिए या फिर दो बार होना चाहिए. सेकेंड टाइम भी हो सकता है, यानी और कंडीशन हम डालेंगे. ओके, सो दिस विल बी हेल्पिंग अस टू गेट इट. एक तो एक बार हो सकता है या फिर दो बार. सो दिस इज द और कंडीशन एंड आई एम पुटिंग दिस वन. अगर ये नहीं होगा तो आपका मेल गलत है. अगर ये नहीं होगा तो system.out.println check at the rate and dot. at the rate कितने बार है? at the rate एक बार ही यूज कर सकते हैं and dot you can use maximum 2 times. okay, so this message you have given and this program will be running now. So if I enter like this one, ibmrd@gmail.com, so it will say that check at the rate and dot. at the rate एक बार ले सकते हैं, dot maximum 2 times. okay, so if I enter valid mail ID now, if just like this one, this just like ibmrd@yahoo.co.in, so this will be accepted. So are you getting? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Co.in, so it will be accepted, no issue about this one. But if I go for writing anything wrong like this one, one पहले कैरेक्टर डाल दिया मैंने 9 ibmrd@yahoo.co.in, ऐसा कोई गलती से डाल दिया तो it will say first character should be enter, that is your enter character at first position, and दूसरा प्रॉब्लम है कि check
@ एंड डॉट, @ एक बार, डॉट मैक्सिमम 2 बार आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव ईयर 2 बार मैंने यूज़ किया तो ये एरर उसने जनरेट करी. So are you clear with this one? And if you are entering a correct email ID like this one, then no issue about this. Suppose I am entering my mail ID amol.ibmrd. This is my mail ID @gmail.com. Okay. So डॉट 2 बार है, एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी, दो बार चलता है, @ एक बार है, और all everything is in character. Now this will be accepted. Yes. Yes, everyone is getting now. Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो गया है ये. और आई एम एक्सपेक्टिंग अभी आगे के एग्जांपल्स में दूंगा. अगर इतना क्रिटिकल आपको आ गया ना आपके मन से, सो ये आगे वाले कुछ सिंपल है, यू कैन चेक इट, इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. ओके, ये ऑलरेडी मैंने ये 2 लिए है, ये भी लिया है, ये 3 तो मेरे खत्म हो चुके हैं. अभी सिर्फ 2-3 असाइनमेंट्स है, वो आप इसको देख के कर सकते हैं. इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट. So from my end, I can say that from 73 onwards to 84, all programs are finished. You just have to try it and you just have to implement it. This is very simple for as per. If अगर आपको ये आ गया, you are expert in string now. Then yes. Yes, sir. So any doubts, any questions? Any doubt, any question? गौरी, कोमल, काही अडचणी? मानसी? No, sir. Vikas, Vishal, anything? No problem? No one? No, sir. Okay. Okay then, no problem. So we'll meet on Monday. Monday we'll start with multi threading in the class. Regular classes के अंदर हमारे वहाँ पर हम मल्टी थ्रेडिंग को चालू करेंगे, बिकॉज ये चैप्टर बहुत फास्ट कर लेना पड़ेगा. मल्टी थ्रेडिंग एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो हमें बहुत थोड़ा फास्ट में ले लेंगे. ओके, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, सो we'll meet Monday on class. Till then, take care and have a good day. You practice it immediately because we have 1 hour. And in this 1 hour I am expecting that you should run this all programs and finish it, because there tomorrow Saturday, Sunday, utilize your time and get it done. Yes, sir. Okay then we'll meet on Monday, no issue. Good day. Sir, everyone. कल lecture होना नहीं. Monday से Monday. Okay, sir. मैसेज मैडम ने दिया है मेरे ख्याल से ऑलरेडी, ग्रुप में मैंने देखा मैसेज.